25 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن 10 سال کے بعد سے میں نے کچن میں قدم نہیں رکھا۔ اپنا دوسرا ہاتھ بھی علیزے کے پیٹ کے گرد باندھتے ہوئے اس کے پیٹ پر اپنے بازوؤں کا حصار مضبوط کرتے، اسے خود میں قید کرتے دھیمی سی آواز میں بولتا ہے، تبھی آپ کو کچھ نہیں آتا جاتا۔ آپ کو آنا چاہیے نا۔ 10 سے 15 سال آپ نے کیا کیا ہے پھر؟ آپ اتنا سا بھی کام نہیں کر سکے کہ بندہ کچھ بنانے کو ہی سیکھ لے، اپنی بیوی کو کچھ بنا کر ہی کھلا دے اچھا سا۔ آپ تو ناشتہ تک نہیں بنا سکتے، حد ہے۔ چھوڑے مجھے۔ اپنے پیٹ پر بندھے زرخان کے ہاتھ کے بازوؤں کو توڑنے کی کوشش کرتے بولتی ہے، کیا مطلب؟ میں نے تمہیں بنا کر کھلانا تھا؟ یہ لڑکیوں کے کام ہے نا، کچن کے کام کرنا۔ اور تم نے کون سے کام سیکھ لیے بی بی؟ مجھے بتاؤ گی ذرا؟ آتا تو تمہیں بھی کچھ نہیں ہے، گوریلا کہیں کی۔ علیزے کی کمر کو پکڑتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف موڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، ہاں تو میں پڑھائی نہیں کرتی تھی؟ اب میں پڑھائی کرتی یا گھر کے کام دیکھتی؟ ان دونوں میں سے کوئی ایک کام ہی سیکھ سکتی تھی نا۔ اور ویسے بھی مجھے پتا تھا کہ مجھے شادی کے بعد آپ کے لیے کام کرنے پڑیں گے، اس لیے میں نے کوئی کام سیکھا ہی نہیں۔ علیزے کہتی کہتی اپنا ایک ہاتھ سرخان کی گردن پر پیچھے کی جانب رکھتی، اس کے چہرے کے قریب ہوتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب وہ خود سے زرخان کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ مجھے کام نہ کر کے دینا پڑے اس لیے تم نے کوئی کام نہیں سیکھا؟ زرخان حیران کن انداز میں پوچھتا ہے، بالکل، اور نہیں تو کیا، آپ سے دور رہنے کے لیے نا۔ مجھے اس سے اچھا آپشن کوئی پہلے سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ آپ کے لیے کوئی کام کروں گی نہیں تو آپ خود بخود مجھ سے بیزار ہو جائیں گے اور خود ہی مجھے چھوڑ دیں گے، لیکن آپ تو ڈھیٹ نکلے۔ میری کسی بات پر آپ کو برا لگتا ہی نہیں ہے، اور اب مجھے بھی آپ برے نہیں لگتے۔ علیزے خوشی سے بھرپور انداز میں کہتی کہتی آخر میں بالکل دھیمی سی آواز میں بولتی ہے، ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ، کیا یہاں پر کنفیشن چلنے والا ہے؟ اگر تم ایسا کچھ بولنے والی ہو تو جلدی سے بتا دو، میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنوں کو پہلے سے نارمل کر لیتا ہوں، کیونکہ تم نہیں جانتی گوریلا کہ میں نے اس دن کا کتنی بے صبری سے انتظار کیا ہے۔ بتاؤ بتاؤ مجھے، کیا کنفیس کرنے والی ہو کہ میں کتنا ہینڈسم ہوں اور کتنا اچھا شوہر ہوں؟ علیزے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زرخان خوشی سے بھرپور لہجے میں بولا، میں ایسا ہرگز نہیں کرنے والی، کیوں کروں کنفیس؟ فیل کر لینا۔ علیزے کہتی ہوئی زرخان سے دور ہو جاتی ہے اور الماری کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے لیے خوبصورت سی فراک نکالنے لگتی ہے۔ فیل تو ہو جاتا ہے لیکن کنفیس کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر تم کنفیس کرو گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ اپنے دونوں ہاتھ کمر پر پیچھے کی جانب باندھے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھائے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے بولتا ہے، اور میں ایسا کیوں کروں کچھ جس سے آپ کو اچھا لگے؟ علیزے اپنی ہنسی کو چھپاتے ہوئے پلٹ کر زرخان کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں، اور یہ وجہ کافی ہے تمہیں مجھ سے محبت کرنے کے لیے اور اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ ہاں یہ عہدہ کافی ہے آپ سے محبت کا، لیکن علیزے کہتے کہتے رک جاتی ہے۔ اس کی خاموشی دیکھ زرخان تجسس بھری نگاہوں سے اس کے چہرے کو اور زیادہ غور سے دیکھنے لگتا ہے، لیکن کیا؟ لیکن اس سے پہلے آپ کو نہیں کچھ کنفیس کرنا چاہیے، کچھ ایسا جس کی وجہ سے میں آپ سے دور ہوں؟ اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنے کپڑے پکڑے زرخان کی طرف چند قدم بڑھاتے ہوئے بولتی ہے، اور ایسا کیا ہے جو مجھے کنفیس؟ زرخان بھی بولنے لگتا ہے کہ بولتے بولتے وہ بھی رک جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں وہی بات گردش کرتی ہے جس بات سے علیزے اس سے دور تھی۔ زرخان کے لبوں پر اچانک سے خاموشی دیکھ علیزے مزید کچھ نہیں کہتی اور اسی لمحے پلٹ کر واپس واش روم میں داخل ہو جاتی ہے۔ واش روم کا دروازہ بند ہونے تک زرخان کی نظریں دروازے پر ہی تھیں۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوتا ہے، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا
सेट किए बालों को माथे पर बिखेरते हुए जरखान कमरे से बाहर निकल जाता है और सीधा नीचे हॉल में आता किचन की जानिब बढ़ जाता है। जरखान ने कल रात से सारे नौकरों को छुट्टी दे दी थी। उनके घर वाले दूसरे गांव में गए हुए थे। इकबाल साहब और रिजवाना बेगम के साथ वो सारे के सारे दूसरे गांव में अपने रिश्तेदारों के घर गए हुए थे। जरखान ने इसी मौके का फ़ायदा उठाते सारे नौकरों को छुट्टी दे दी थी। हवेली के अंदर बाहर कोई भी नौकर मौजूद नहीं था। वो इस वक्त को अलीज़े के साथ ही गुजारना चाहता था। सीढ़ियों से नीचे उतरता हॉल से गुजरते हुए वो किचन की जानिब बढ़ता है, जहाँ इसे 15 साल गुजर चुके थे किचन में कदम रखे हुए। आज अपनी बीवी की वजह से वो किचन में दोबारा दाखिल होता है और ख़ुद नाश्ता बनाने की तैयारी करता है। अमाया, रुक जाओ, कितनी दूर जाओगी? और यहाँ मुसलसल अमाया के पीछे चलते हुए कब से इसे आवाज़ें दिए जा रहा था, लेकिन अमाया इसकी एक बात आवाज़ का जवाब नहीं देती। एक बार भी पलट कर पीछे की तरफ नहीं देखती। बस जल्दी जल्दी कदम रखती हुई वो आगे की जानिब बढ़ती जा रही थी। रुक जाओ अमाया, अब और नहीं चल सकता मैं। क्यों? प्रेग्नेंट है? चलते हुए कुछ हो रहा है क्या? चलते रहें चलना है तो, नहीं तो वापस चले जाएं। मैंने थोड़ी कहा है कि मेरे पीछे आएं। आर्यन थके हुए अंदाज में बोलता है कि अमाया पलटकर गुस्से में बुलंद आवाज़ में बोलती है, कब से तुम्हें प्यार से बुला रहा हूँ, इस पर तो तुम्हारे मुंह से एक आवाज़ नहीं निकली, और अब देखो कितनी गंदी गंदी बातें कर रही हो। मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ क्या? अमाया की तरफ बढ़ते हुए लंबे लंबे कदम रखते आर्यन बोला, मुझे क्या पता, आपको तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। पैसे बहुत ज़्यादा आ गए हैं ना आपके पास, अब तो आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक काम करें। आर्यन को अपनी तरफ आता देख अमाया अभी भी गुस्से में बोलती है, क्या? अमाया से चंद कदम के फासले पर खड़ी होकर पूछता है, आप भाड़ में जाएं। अमाया बोलती है और आर्यन आसमान की तरफ देखते हुए गहरी सांस भरता अपने लब भींचते हुए दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच जाता है। या अल्लाह, मुझे सब्र दे, फिर इस तरह सब्र दे, पूरी दुनिया का सब्र मुझे ही दे दे इस वक्त। आर्यन आसमान की तरफ देखते हुए बुलंद आवाज में गुस्से वाले लहजे में बोलता है, आप सब्र का क्या करेंगे? आप तो लोगों का सब्र आजमाने के लिए दुनिया में आए हुए हैं, बुढ़े घुसट कहीं के। अब के बाद अमाया बोलते हुए आर्यन की तरफ बढ़ती है, देखो, तुम मुझ पर पर्सनल अटैक मत करो, और मैं तुम्हें किस एंगल से बूढ़ा नज़र आता हूँ? इतना हैंडसम, इतना जवान तो हूँ मैं, हर एंगल से नज़र आता है, वो भी एचडी वाले अंदाज में। किसी भी एंगल से देख लो, बोलते ही नज़र आएंगे। ये प्लास्टिक सर्जरियां करवा कर आप कोई जवान 22 साल लड़के नहीं हो गए, आप 35-36 साल के बुढ़े ही हैं। अब आर्यन कहता हुआ माया की जानिब कदम बढ़ाने लगता है, मुझे आपके एंगल देखने का कोई शौक़ नहीं है, इन्हें देखकर अपना दिल नहीं ख़राब करना चाहती। दिमाग तो आपने मेरा वैसे ही ख़राब कर दिया है, अब क्या चाहते हैं, दिल भी ख़राब करके मैं जल्दी एक्सपायर हो जाऊं? अमाया दोबारा बोलती आर्यन के सामने खड़ी होती है। इन दोनों के दरमियान अब सिर्फ एक कदम का फासला रह गया था। खाली सड़क पर धूप की रोशनी के नीचे वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खामोशी से खड़े हो गए थे। अमाया गुस्से में आर्यन को घूरना चाहती थी, लेकिन रोशनी सूरज की इतनी तेज थी कि इसकी आंखें मुकम्मल तौर पर खुल भी नहीं रही थीं, और अमाया की यही हरकत देख आर्यन के लबों पर मुस्कुराहट छाने लगती है। आर्यन अमाया की मज़ीद करीब आता इसके सर के ऊपर अपने दोनों हाथों से इसके चेहरे की जानिब साया बनाने लगता है, धूप से इसके चेहरे को बचाता है और मुस्कुराते हुए इसके चेहरे की जानिब देख रहा होता है। मुझे घूरना है तो अंदर चलकर घूर लो,
यहाँ तुम्हारी आंखें मुकम्मल नहीं खुल रही। मुझे आपको देखने का शौक नहीं है, और घूरने का तो बिल्कुल भी नहीं। आर्यन के हाथ अपने सर से हटाते हुए अमाया गुस्से में जवाब देती है और दोबारा जाने के लिए पलट जाती है। वो किस तरफ जा रही थी इसे भी नहीं पता था, बस गुस्से में चलती जाती है। इस वक्त भी वो अपने कदम जाने के लिए बढ़ाती, इससे पहले आर्यन इसका रुख वापस अपनी तरफ मोड़ लेता है। मुझे देखने का शौक नहीं होता तो इतनी दूर तुम दोबारा सफ़र तो हरगिज़ नहीं करती, और तुमसे दूर रहने का मैं सोच भी नहीं सकता। इस वक्त तुम्हें खुद से दूर करने की एक वजह थी, जो वजह अब भी है, लेकिन तुम्हारा दूर ना जाना देख मैं भी खुद को रोक नहीं पाया, और इसीलिए तुम्हारे साथ यहाँ आ गया। तुम्हें लगता है कि मेरे लिए पैसा ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पैसा। पैसा पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में पैसा इतना ज़रूरी नहीं है कि मैं इसके आगे तुम्हें छोड़ दूँ। जब ज़िंदगी में कोई रिश्ता नहीं होता, कोई इंसान नहीं होता, किसी अपने का वजूद नहीं होता, तो इंसान के पास सिर्फ पैसा होता है, जिससे वो हर चीज़ पाने की कोशिश करता है। और तुमसे पहले तुम्हारी ज़िंदगी में आने से पहले मैं पैसों से सब हासिल करने की कोशिशें करता था, ताकि दुनिया मेरे ग़ुलाम बनकर रहे और मुझे किसी का ग़ुलाम नहीं बनना पड़े। लेकिन तुम्हारे आने के बाद सब बदल गया है। ये आर्यन शाह बदल गया। मैं अपने पैसों में से एक रुपया भी किसी के ऊपर खर्च करने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे पैसा जितना अजीज़ था इतना कोई नहीं। लेकिन मैंने पैसे तुम पर खर्च किए, इसलिए नहीं कि दिखावा करना था, बस इसलिए कि तुम्हारे आगे इनकी औकात नहीं है, जानता हूँ मैं। मैं गलत हो सकता हूँ, बहुत जगहों पर तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, तुम्हें छोड़ने का बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरी बात का यकीन मानो, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। तुम्हें हज़ार बार छोड़ने का बोल सकता हूँ, पर तुम्हें कभी छोड़ नहीं पाऊँगा। जितना पागल और जुनूनी मैं तुम्हारे लिए हूँ, वो क्यों? इसके बाद तो मेरा खुद मैं भी कुछ नहीं बचा। तो इसके बाद मेरा तो क्या, खुद मैं भी कुछ नहीं बचा। आई थिंक यहाँ पे खुद मेरा पैसा होना चाहिए था। आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने। तो मैं खुद से दूर होकर करके मैं अपने आप को भी नहीं खोना चाहता। तुम्हें हर्ट करने के लिए सॉरी, तुम्हें खुद से दूर करने का कहने के लिए सॉरी, तुम्हें कॉल ना करने के लिए सॉरी, हर चीज़ के लिए सॉरी। अमाया की आंखों में देखते हुए अपनी बात मुकम्मल कहता है, और कहने के बाद वो अपनी आंखें झुका जाता है, इसलिए क्योंकि इसकी आंखों में नमी भरने लगी थी। अगर आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते तो बार बार कहते क्यों हैं? आप जानते हैं आपके अल्फाज कितने बुरे लगते हैं। मैं जानती हूँ कि मैं भी पहले आपसे दूर रहना चाहती थी, पर नहीं, अब जाना चाहती, आपके साथ ही रहना चाहती हूँ हमेशा। पर अब बार बार मुझे खुद से दूर करने का कहते हैं, तो मेरा दिल करता है कि मैं मर ही जाऊँ। बकवास नहीं करनी मेरे साथ, अमाया रोते हुए बोलती है। कि आर्यन जल्दी से गुस्से में बोलता हुआ इसे बाजू से पकड़ता अपने करीब कर जाता है। तो शुरू क्यों की थी? आप शुरू नहीं करते तो मैं भी नहीं करती। आर्यन के सीने पर हाथ रखे अमाया सर उठाए इसके चेहरे को देखकर रोते हुए बोलती है। मैंने तो बात की थी, बकवास थोड़ी की थी। अमाया के चेहरे को प्याले नुमा अंदाज में अपने दोनों हाथों में कैद किए मोहब्बत से चूर अंदाज में बोलता है। मेरे लिए वो बकवास ही थी, अमाया कहती है, और आर्यन के सीने पर अपना सर रख जाती है, इसकी कमर के गिर्द अपने दोनों बाजुओं का हिसार बांधे खुद को आर्यन में कैद करने लगती है। अमाया जैसे ही आर्यन के सीने से लगती है, आर्यन भी इसकी कमर के गिर्द बाजुओं का हिसार बांधते इसे खुद में कैद करने लगता है।
मैं ये फाइल्स दिखाने जा रही थी, तुम चले जाओ। पता है ना, लड़कियों को देखकर इनका पारा चढ़ने लग गया है। ऐसा ना हो कि मुझे देखकर ही वो मुझे काम से फायर कर दें। मुझे डिस्टर्ब करने के जुर्म में ये फाइल्स तुम इनके पास लेकर जाओ। एक लड़की ब्लू कलर के जीन्स शर्ट में मलबूस, गले में स्ट्रॉलर को गर्दन के गिर्द बांधे हुए, हाथ में तकरीबन 10 से 12 फाइल्स पकड़े हुए अपने सामने खड़े 3 पीस सूट इनर वाइट शर्ट में मलबूस आदमी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोलती है, जैसे मुझे देखने के बाद तो इनके चेहरे पर खुशी से 4 चांद लग जाएंगे। मैं नहीं जा रहा। भले वो मुझसे उम्र में छोटा है, लेकिन इसका गुस्सा बहुत बुरा है। 2 दिन में आकर इसने हमारी ऐसी की तैसी कर दी है। मैं इसके सामने चला गया ना, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। और इन फाइल्स में अगर कुछ गलत निकल आया, मेरी जॉब तो खतरे में पड़ गई ना। मैं नहीं जा रहा कहीं भी, तुम खुद लेकर जाओ। आदमी गर्दन मोड़े जान के कमरे की जानिब देखते हुए बोलता है। शीशे की बड़ी सी दीवार से अंदर जान को कुर्सी पर बैठे हुए टेबल की फाइल्स पर काम करते देख वो डरे हुए अंदाज में बोलता है, अब हम दोनों में से तो अब हम दोनों में से किसी को तो लेकर जाना पड़ेगा ना। अब ऐसे तो नहीं चलेगा। अब की बार लड़की थके हुए अंदाज में गहरी सांस लेते बोलती है, और बोलते ही वो जान के कमरे की तरफ देखने लगती है कि इतने में पीछे से मस्टर्ड कलर की फ्रॉक में मलबूस, सर पर दुपट्टा ओढ़े, कंधों पर शॉल ओढ़े बानी बिल्डिंग में दाखिल होती जान के कमरे की तरफ ही बढ़ रही थी कि इतने में इन दोनों की बातें सुनते इसके कदम रुक गए थे। जैसे इनकी जुबान पर कुफल लगता है, बानी इन दोनों की जानिब बढ़ने लगती है। क्या मैं ये ले जाऊं अंदर, अगर आप लोगों को मुनासिब लगे, बानी कहती है। और वो दोनों जल्दी से पलटकर झटका खाते हुए बानी की जानिब देखते हैं। आ, आ, आप आप कौन हैं? लड़की हैरान कुन अंदाज में पूछती है। फिलहाल तो मैं कोई नहीं, पर जाने से पहले आपको इस सवाल का जवाब ज़रूर दे दूंगी। ये मुझे दे दें, मैं अंदर ही जा रही हूँ, मैं इन्हें दे दूंगी। बानी लड़की के हाथ से फाइल लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोलती है कि इतने में लड़की अपने हाथों में पकड़ी फाइल्स को पीछे की जानिब कर लेती है। ये मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि मैं आपको जानती नहीं हूँ। और दूसरी बात, आप जान सर के कमरे में नहीं जा सकती। उन्हें अपने कमरे में कोई लड़की नहीं पसंद। अगर इनके रूम में जाने की इजाज़त होती तो हम अब तक जाकर ये फाइल्स इन्हें दे चुके होते, लेकिन उन्होंने हमें सख्ती से मना किया हुआ है किसी भी लड़की को बिना किसी बात के इनके रूम में आने से। अगर आप जाएंगी इस वक्त तो सर को गुस्सा आएगा, और वो गुस्से में हम सब पर और वो गुस्सा फिर हम सब पर निकलेगा। बेहतर है आप नहीं जाएं। लड़की कहते हुए बार बार जियान के रूम की तरफ देख रही थी। जियान अपने काम में मगन हुआ पड़ा था। वो नज़र उठाकर अपने अतराफ में देखने की तौफीक तक नहीं कर रहा था। लड़की की नज़रें जैसे बार बार जान के रूम की जानिब उठ रही थी, वैसे ही बानी की भी एक नज़र जान के कमरे की तरफ उठती है। आप बेफिक्र हो जाएं, आपके सर नहीं अगर गुस्सा आपके सर ने अगर गुस्सा किया तो इनके गुस्से को हैंडल मैं खुद कर लूँगी। आप लोगों पर वो गुस्सा नहीं करेंगे। आप ये फाइल नहीं ले जा पा रही, इसलिए मुझे दे दें, मैं दे दूँगी इन्हें। बानी कहते ही लड़की के हाथ से फाइल लिए जान के कमरे की जानिब बढ़ने लगती है। बानी को जाता देख लड़की और आदमी दोनों एक साथ बराबर खड़े हैरान कुन अंदाज में जान के कमरे की तरफ ही देख रहे थे। बानी कमरे के दरवाजे पर बिना दस्तक दिए अंदर दाखिल हो जाती है। बानी की हरकत देख वो दोनों हैरान कुन अंदाज में एक दूसरे की जानिब देखने लगते हैं। ये लड़की तो गई, आदमी डरे हुए तासुरात चेहरे पर सजाए बोला। लेकिन ये है कौन? हमने तो इसे आज से पहले ऑफिस में नहीं देखा। अब की बार लड़की हैरान अंदाज में बोलती है, शायद न्यू इंटर्न होगी, हमें क्या पता। आदमी कंधे उचकाते हुए बोल ही रहा था
کہ اتنے میں جان کی نظر دروازے میں کھڑی بانی پر اور پھر بانی سے ہٹ کر پیچھے کھڑے اس لڑکی اور آدمی پر پڑتی ہے، جو جان کی ایک نظر پڑتے ہی فوراً سے ہکا بکا ہوئے اپنی اپنی کرسیوں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ آپ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بانی کو دروازے میں کھڑا دیکھ جان حیرانگی سے پوچھتا ہے، لیکن اپنی کرسی سے اٹھتا نہیں ہے۔ یہ تو میں ہرگز نہیں کہوں گی کہ میں تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں، بانی اندر آفس میں داخل ہوتے ہوئے بولتی ہے۔ پھر یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ اب کی بار اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے پوچھتا ہے۔ جاب لینے کے لیے، جان کے ٹیبل پر فائلز پٹکتے ہوئے بولتی ہے۔ آپ پھر شروع ہو رہی ہیں؟ میں نے کہہ دیا نا کہ آپ کو جاب نہیں کرنی ہے پھر۔ جان فائل سے نظریں ہٹاتے بانی کو دیکھ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے بول رہا تھا۔ ہاں تم نے کہا تھا، لیکن تم نے یہ بھی کہا تھا کہ میں کہیں باہر نہ کروں، تو میں نے سوچا کہ میں یہاں تمہارے ساتھ تمہاری کمپنی میں جاب کر لیتی ہوں۔ کیسا؟ بانی گہری سانس لیتے ہوئے بولتی ہے اور جان کے سامنے کرسی پر بیٹھ جاتی ہے۔ بالکل بکواس۔ گھر میں سکون نہیں مل رہا کیا؟ یہ سکون کچھ زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے اسے برباد کرنے کے لیے آپ یہاں آ گئی ہیں۔ بانی کو دیکھتے ہوئے کولڈ انداز میں کہتا ہے۔ ہاں نہیں ملا سکون، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا۔ تم نے ہی کیا ہے نا، وہ بھی شرافت سے۔ مجھے نوکری دو، کوئی بھی پوسٹ دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کام کر لوں گی۔ نوکری لینے کے لیے آئی ہیں گنڈا گردی کرنے کے لیے؟ اور ایسے غصے میں کون نوکری لیتا ہے کسی سے؟ جان بانی کے انداز پر حیرانگی سے بولتا ہے۔ تم مجھے دے رہے ہو یا نہیں؟ شرافت سے بتاؤ۔ بانی ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتی ہے۔ حد ہو گئی ہے، نہیں دے رہا۔ کہہ دیا نا، کام کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ جو چیز چاہیے مجھے بتا دے، میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ مہنگی سے مہنگی ہوگی تو میں وہ بھی خرید سکتا ہوں۔ بتائیں کیا چاہیے؟ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہو کر جان سخت لہجے میں پوچھتا ہے۔ سکون چاہیے، جو تم نے برباد کیا ہوا ہے۔ گھر میں بیٹھوں تو سارا دن تمہاری بے فضول کی باتیں میرے دماغ میں گھومتی رہتی ہیں۔ میرا بیٹا بھی اسکول چلا جاتا ہے، وہاں سے آ کر وہ کنڈرگارٹن پہ چلا جاتا ہے، اور پھر گھوم پھر کر وہ شام کو میرے پاس آتا ہے۔ میں اکیلی اس فلیٹ میں کروں تو کروں کیا؟ میرے پاس کوئی کام بھی نہیں ہے، اوپر سے تم نے نوکر بھی اتنے رکھوا دیے ہیں کہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اب میں سارا دن وہاں کروں کیا؟ شرافت سے مجھے کام دو بس، بہت دماغ خراب ہو گیا ہے میرا۔ بانی بھی غصے میں کہتی ہوئی کھڑی ہوتی، اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے جان کی آنکھوں میں دیکھتے غصے میں کہتی ہے۔ دیکھیں، تم دیکھو اور سنو بھی، کام دے رہے ہو یا نہیں؟ جان کی بات کاٹتے ہوئے بانی بولی۔ یہاں پر ساری پوسٹ پر لوگ موجود ہیں، میں کون سا کام دوں آپ کو؟ اور جو کام میں دینا چاہتا ہوں وہ آپ لے نہیں رہی ہیں۔ اس وقت تو میں تو کروں کیا آپ کے لیے؟ اور رہی بات دماغ خراب ہونے کی، آپ سے زیادہ آپ میرا کر چکی ہیں۔ اب آپ میری آنکھوں کے سامنے رہ کر میرا یہ کام بھی برباد کرنا چاہتی ہیں؟ کچھ نہیں کرنے کو ملے گا، واپس گھر جائیں، جا کر آرام کریں۔ جان غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہتے واپس کرسی پر بیٹھنے لگتا ہے کہ بانی پھر سے بول پڑتی ہے۔ اس کی بات سنتے ہوئے جان واپس کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں کون سا اس وقت ہل چلا کر آئی ہوں جو میں تھک گئی ہوں؟ میں آرام ہی کر کے آئی ہوں، اور آرام سے بیزار ہو کر ہی آئی ہوں۔ مجھے کام دے رہے ہو یا نہیں دے رہے؟ کون سا کام جو میں آپ کو وہ بھی بتاؤں؟ کون سا کام جو میں آپ کو ہو وہ بھی تو بتائیں مجھے۔ جان تھکے ہوئے انداز میں گہری سانس لیتے ہوئے پوچھتا ہے۔ اسے غصہ آ رہا تھا بانی پر، وہ بانی پر غصہ نہیں کر پا رہا تھا، لیکن جو تم نے باہر باقی لڑکیوں کو دیا ہوا ہے، ان میں سے کوئی مجھے بھی دے دو۔ بانی پرسکون انداز میں باہر کی طرف اشارہ کرتے کہتی ہے اور ساتھ ساتھ گردن موڑے دیکھتی ہے۔
जहाँ सब लोग तजस्सुस भरी निगाहों से इन्हीं की जानिब देख रहे थे। बानी के इशारा करने पर जान की नज़रें भी बाहर की तरफ उठती हैं। सबकी नज़रों को अपनी और बानी की तरफ देख जान एक ही बार सख्त तैश भरी निगाहों से इनकी जानिब देखता है और सबकी सांसों को खुश्क करता है। सबकी नज़रें जैसे ही उन पर से हटती हैं, जान और दोबारा बानी की तरफ मुतवज्जा होता है। वो सब इस काम में एक्सपर्ट हैं। अब मैं क्या बोलूँ? तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ ये सारी फाइल्स को रीसेट करने में। जो काम तुम कर रहे हो, तुम इसमें से कोई काम बता दो मुझे। ठीक है, पर मैं सैलरी पूरी लूँगी। सैलरी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। काम भले तुमसे थोड़ा थोड़ा करवाओ काम भले तुम मुझसे थोड़ा थोड़ा करवाओ, कोई मसला नहीं, लेकिन सैलरी तो मैं पूरी ही लूँगी। बानी कहती हुई अपनी लाई हुई फाइल्स में से एक उठाते हुए वापस कुर्सी पर बैठ जाती है। उठें अभी। जैन जल्दी से बोलते हुए बानी की तरफ बढ़ता है। इसके हाथ से फाइल लिए वो उससे में टेबल पर फेंकता है। क्यों? अभी और इसी वक्त मेरे ऑफिस से बाहर जाएं। बाहर की जानिब इशारा करते बोलता है। क्यों जाऊं मैं? जब तक मुझे नौकरी नहीं दोगे मैं तो कहीं नहीं जा रही। वानी जिद्दी अंदाज में कहती हुई टांग पर टांग रखे मुंह ही मोड़ लेती है। इतनी जिद्दी क्यों बन रही है? नहीं देनी मैंने आपको नौकरी, आप जाएं यहाँ से। तो तुम इनकार कर रहे हो? कोशिशें तो मैं वही करने की कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन तुम फिर भी मुझे नौकरी दोगे? अरे भाई, टेंशन वाली क्या बात है? मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करती। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ बिजनेस को। तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। और वैसे भी मैं ये किसी और वजह से कर रही हूँ। अब और कौन सी वजह है? और कितनी वजह है आपके पास? मुझे एक ही बार क्यों क्लियर नहीं कर देती आप सब? जियान हद से ज़्यादा बिजार अंदाज में बोला। तुम और मैं एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं हैं। जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, हम शादी कैसे करेंगे? और शादी के बाद हम रहेंगे कैसे एक साथ? तो तुम्हारी कल वाली बात पर गौर करते हुए मैंने सोचा, जब तक तुम मेरे लिए बारात लेकर आओ तब तक मैं तुम्हारे साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग सेट कर लेती हूँ, ताकि बाद में हमारी वजह से मेरे बेबी को कोई मसला ना हो। जैन जैन के सामने खड़ी होती बानी इसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहती है। मैं गुंडा हूँ क्या? या मैं मवाली नज़र आता हूँ शक्ल से? मेरी वजह से आपके बेबी को मसला कैसे हो सकता है? जैन बानी की तरफ कदम बढ़ाते बोलता है कि बानी इसके जवाब में बोलती हुई खुद भी जान की तरफ बढ़ती है। आजकल जो तुम बन रहे हो ना, वो किसी गुंडे मवाली से कम नहीं है। शक्ल देखो अपनी, हर वक्त चेहरे पर गुस्सा सजाए रखते हो। पहले तुम मुझसे डर कर बात करते थे, ठीक से बात भी नहीं कर पाते थे, और अब देखो, मजाल है जो तुम्हारी नजरें नीचे झुक जाएं। और जबान देखो कितनी तेज चलती है। लड़की मैं हूँ, लेकिन तुम्हारी जबान चेक करो। खैर, अगर तुम इसी तरह सड़े हुए रहे और मैं भी इसी तरह करती रही तो हमारा शादी करना फजूल होगा। इसलिए बेहतर है कि हम दोनों सुकून से एक दूसरे को समझें और समझने के बाद ही शादी करने का फैसला करें। माना कि मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। अगर तुमसे जल्द से जल्द शादी नहीं की मैंने, तो मेरे ससुराल वाले किसी भी वक्त आ जाएंगे मेरे सर पर एक नया अजाब बनकर। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब भी नहीं है कि मैं एक ऐसे आदमी से शादी कर लूँ जो मुझसे उम्र में छोटा है, लेकिन फिर भी मुझ पर वो अब ऐसे जमाता है जैसे मुझसे बहुत बड़ा हो। तुम शराफत से मेरे साथ पहले वाले बनकर रहो, फिर हमारी शादी वाली ट्रक सीधी हो जाएगी। अगर तुम ऐसे सड़े हुए रहे ना, कसम खा कर कहती हूँ तुम्हारा कत्ल कत्ल मैं खुद करूँगी। अब बताओ, दोगे नौकरी मुझे? बानी गुस्से में खुद को पुरसुकून करती कहती है कि इसकी बातों का कोई भी जवाब देने के बजाय खामोशी से मुस्कुराती हुई नजरों से बानी के चेहरे को देखकर वो अपने चेहरे पर छाने वाली मुस्कुराहट को छुपाने की मुकम्मल कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब तो हो रहा था, लेकिन इसकी आंखें इसका साथ नहीं दे रही थी।
जवाब दोगे मुझे, ये बस ऐसे ही देखते रहोगे? बानी हाथ की चुटकी बचाए जान को होश की दुनिया में लाते हुए बोली, जब इस ऑफिस का मालिक आपका है तो ये ऑफिस आपका है। काम करना है करे, नहीं करना तो ना करे। यहाँ आना है या नहीं आना आपकी मर्जी। ना मैं आपको रखूँगा ना कुछ कहूँगा, लेकिन एक बात अपने जहन में बिठा लें, मैं आपको नौकरी करने नहीं दूंगा क्योंकि आप नौकर नहीं हैं, ना किसी की, और मेरी तो हरगिज़ भी नहीं है। मालिक बनकर रहे यहाँ, मैं एम्प्लॉय बन जाऊंगा। ज़ियान अपने दाएं हाथ से अपनी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बानी से बोलता है, जिस पर बानी हैरान कुन अंदाज में ज़ियान के चेहरे की जानिब इसकी आंखों में देखती रहती है, और आंखों में देखते देखते इसके दिल की धड़कनें तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाती हैं, इतनी तेज़ी से कि वो खुद अपनी धड़कनों की आवाज़ सुन पा रही थी। छोड़ने का इरादा है मुझे या नहीं? सड़क पर खड़े हैं लड़की, घर में नहीं। छोड़ो मुझे इससे पहले कि कोई आकर देखे। इस सड़क पर कोई नहीं आता शाह, इसीलिए तो मैं यहाँ आती हूँ। अमाया आर्यान के सीने पर अपनी थोड़ी रखे इसके चेहरे की जानिब देखते हुए कहती है, जो अपनी नजरें अतराफ में घुमाता। कोई है तो नहीं, ये चेक कर रहा था। क्या मतलब यहाँ कोई नहीं आता? आर्यान तजस्सुस से पूछता है। जी, दिन में तो कोई नहीं आता, रात का मुझे पता नहीं। रात का मतलब? अमाया बोलती ही है कि आर्यान फौरन से पेशतर पूछता है। मतलब शाह, यहाँ पर दरख्त है, यहाँ पर दिन में और रात में गांव में रहने वाले लोग नहीं आते। पहाड़ी रास्ते की तरफ जाती है। जी, ये सड़क यहाँ पर रात को जो दरख्तों के ऊपर रहते हैं वो बाहर आते हैं। अमाया अपने हाथों के इशारे से आर्यान को तफसील से बताती है। सीधा सीधा बोलो ना, यहाँ पर चुड़ैलें रहती हैं। बातों को घुमा क्यों रही हो? दरख्तों के ऊपर रहने वाले लोग वो लोग नहीं होते, चुड़ैल होते हैं। वो तुम्हारे ख़ानदान के लोग होते हैं। चलो चुप करके अब यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारे सर पर कोई सवार हो जाए। मुझसे तुम इंसानी रूप में नहीं संभाली जा रही। तुम्हारे ऊपर कोई चुड़ैल हावी हो गई तो मेरा क्या बनेगा? आर्यान जल्दी जल्दी बोलते हुए अमाया को खुद से दूर करता, इसका हाथ अपने हाथ में कैद करता इसे अपने साथ हवेली वापस ले जाने के लिए बढ़ता है। आर्यान के लहजे में इसका डर नुमाया था, जिसे सुनते हुए अमाया का बुलंद आवाज में कहकहा छूटता है। शाह, आपको चुड़ैलों से डर लगता है? आर्यान के पीछे चलते चलते पूछती है। नहीं तो, वो तो मेरी बिछड़ी हुई बहनें हैं। बहनों से कौन डरता है भला? क्यों फजूल का सवाल कर रही हो? चुड़ैल से तो बंदा डरेगा ही। अब इनके साथ बैठकर कोई ड्रिंक तो नहीं करेगा ना? कभी मेरे सवाल का जवाब सीधे तरीके से भी दे दिया करें आप। आपका मुंह खराब नहीं हो जाएगा? या अल्लाह, किसी बात का सीधा जवाब देने पर नक्शा तब्दील नहीं कर देंगे? ये ऐसी शक्ल रहेगी आपकी। आर्यन तंजिया लहजे में कहते हुए मुसलसल आगे की तरफ बढ़ता जाता है कि माया भी जवाब में तंजिया अंदाज में बोलती इसके पीछे पीछे चलती जाती है, और कुछ ही देर का सफ़र तय करते वो वापस हवेली पहुंच चुके थे, जहां हवेली के बाहर ही अदा और अब्बास दोनों गाड़ी के पास खड़े बातें कर रहे थे। इन दोनों को देख अदा और अब्बास भी अपनी तवज्जो अमाया और आर्यन की तरफ करते हैं। बाबा, बाहर क्यों खड़े हैं? धूप हो रही है, तबीयत ख़राब हो जाएगी। अमाया बोलती है कि आर्यन फ़ौरन से गर्दन मोड़कर अमाया की तरफ देखता है। मुझे जो तुम आधे घंटे से धूप में लिए खड़ी थी, मुझे तो तुमने एक बार भी नहीं बोला कि धूप में तबीयत ख़राब हो जाएगी। यहाँ तो तुम आते ही बोलने लग गई। आर्यन खुले मुंह के साथ हैरान कुन अंदाज में बोलता है कि अमाया इसकी बात पर नफ़ी में सर हिलाती गंदा सा मुंह बनाती आर्यन के हाथ से अपना हाथ छुड़वाए अब्बास की तरफ बढ़ने लगती है। हमेशा जलते ही रहना, कभी खुश ना होना आप, और ना कभी मुझे खुश रहने देना। अमाया अब्बास की तरफ
عباس کے پاس جاتی، اس کے بازوؤں کے گرد اپنی بازو کا حصار باندھے اپنا سر عباس کے بازو پر رکھ کے آریان کو دیکھتے ہوئے بولتی ہے، تم مجھے کبھی خوش کرنے والے کام کرتی ہو یا خوش رہنے دیتی ہو جو میں خوش رہوں، یا خوش مزاجی سے کوئی باتیں کروں، ہمیشہ میرا خون اور بی پی بڑھائے رکھتی ہو۔ آہ، رہنے دو، تم سے بات کرنا فضول ہے اس وقت۔ آریان تھکے ہوئے انداز میں اب کی بار گندا سا منہ بنائے بولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ لیتا ہے۔ اچھا بس کر جاؤ تم دونوں، کبھی لڑائی ختم بھی کر دیا کرو۔ دیکھو تو بول بھی کون رہا ہے جسے خود لڑائی کرنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے۔ عباس بول ہی رہا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ادا فوراً سے بولتی ہے، جس پر عباس چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیے اسے دیکھنے لگتا ہے۔ اچھا بس اب تم دونوں شروع نہ ہو جانا۔ ارے ہاں، ایک بات بتانا بھول گیا، عارش نے بلایا ہے، فون آ گیا ہے اس کا، ہم بھی وہیں جا رہے ہیں، تم دونوں کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ آریان اپنی بات مکمل کرتا اس سے پہلے ہی عباس کی بات درمیان میں ہی روک کے خود بول پڑتا ہے، لالا نے بلایا؟ خیریت؟ یہ تو وہیں جا کر پتہ چلے گا گڑیا۔ بس چلو دیکھتے ہیں اب کی بار تمہارا لالا کون سا چاند چڑھانے لگا ہے۔ امائے کا چہرہ پیالے نما انداز میں اپنے ہاتھوں میں پکڑے عباس بولتا ہے اور بولنے کے فوراً بعد امائے کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے، جسے دیکھ ادا تو مسکرا دیتی ہے لیکن آریان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ اوئے، تیرے پاس تیری بیوی نہیں ہے؟ میری بیوی سے دور رہ۔ جلدی سے امائے کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے آریان غصے میں بولا، تیری بیوی یہ بعد میں بنی تھی، پہلے میری اولاد ہے، تو میرے سامنے اس پر حق نہ ہی جتا تو بہتر ہوگا۔ عباس امائے کے چہرے پر دوبارہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، جسے دیکھ آریان فوراً سے عباس کا ہاتھ امائے کے چہرے سے ہٹائے اسے فوراً سے گاڑی کی طرف لیے بڑھتا ہے۔ فرنٹ سیٹ پر امائے کو بٹھائے عباس کو غصے والی نظروں سے، خون اترتی نظروں سے دیکھتے ہوئے آریان ڈرائیونگ سیٹ پر سوار ہوتا گاڑی کو حویلی سے باہر نکالنے لگتا ہے۔ آریان کی گاڑی جیسے حویلی سے باہر نکلتی ہے، عباس اور ادا پر بھی گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، حویلی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ وہ چاروں عارش کی سفید حویلی جانے کا راستہ طے کرتے ہیں، جس کی لوکیشن عارش، عباس اور آریان دونوں کو بھیج چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ عارش کی حویلی کے باہر موجود تھے۔ حویلی کے باہر پہنچتے ہی گاڑی کا ہارن بجاتے ہیں، جس سے دروازے کے اندر باہر کھڑے گارڈز دروازہ کھولتے ہیں اور ایک ایک کر کے دونوں اپنی گاڑیوں کو اندر لے جاتے ہیں اور بالکل دروازے کے سامنے پارک کرتے گاڑیوں سے باہر نکلتے ہیں۔ جیسے ہی وہ چاروں گاڑی سے باہر نکلتے ہیں، حویلی کو باہر سے دیکھ وہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ بے حد بڑی اور بے حد خوبصورت حویلی جو سفید رنگ میں ملبوس، باہر ہریالی جو اس وقت اور گھنی ہو گئی تھی۔ وہ چاروں عارش کی حویلی دیکھ ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، خوشی سے بھرپور انداز میں، لیکن اپنے چہرے پر خوشی کو ظاہر نہیں کرتے۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہیں، ابھی کچھ قدم رکھتے ہی ہیں کہ اتنے میں عارش سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہوتا ہے اور آج بھی ڈارک گرے کلر کے 3 پیس میں سوٹ ملبوس، انر شرٹ وائٹ پہنی تھی، جس کی شرٹ شروع کے 2 بٹن کھلے تھے، دونوں بازو کوہنیوں تک اوپر کیے ہوئے تھے۔ میں نے کچھ ورڈز اسکپ کر دیے، وہ پتہ نہیں کیا لکھے ہوئے تھے۔ عارش سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ عباس اسے دیکھ فخریہ انداز میں گہری سانس بھرتا ہے۔ یہ تو ہینسم ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس دنیا میں بس آپ ہی ہینسم ہیں؟ آریان کہتا ہی ہے کہ امایا فوراً سے بولتی ہے، تم میری بیوی ہو نا، دشمن تو نہیں ہو، تو دشمنوں والی حرکتیں کیوں کرتی ہو میرے ساتھ؟ کبھی میری کسی بات پر راضی بھی ہو جایا کرو، کبھی میری تعریف بھی کر دیا کرو، دوسروں سے مختلف بھی سمجھ لیا کرو، کچھ نہیں ہوگا، صرف میرا دل خوش ہوگا۔ اور کیوں کروں میں آپ کا دل خوش؟ آریان کی بات پر امایا اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائے دبے دبے الفاظوں میں بولتی ہے، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں، اس لیے۔
आर्यन भी अमाया के सर पर हाथ रखे इसी की तरह दबे दबे अल्फाजों में बोलता है, जिस पर अमाया चेहरे की मुस्कुराहट लबों की और ज़्यादा गहरी हो जाती है। आप सब लोग यहाँ आए, शुक्रिया। आरिश इन चारों के सामने खड़ा होता बोलता है।